Hello students, my name is Sagar Pandya and today we are going to start learning the base of your history syllabus. That is learning about the guidance lecture. Let us begin with the first part with me, Sagar Pandya, and space. That is Sagar Pandya Arts Coaching Educators. Let's begin. So yes students, we are going to learn about the base, that is 11th and 12th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री में तुम लोगों को किस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा. सो सबसे पहले कि भाई सर अभी तक हम लोग तो 40 मार्क्स के पेपर या 80 मार्क्स के पेपर में हम लोगों का कुछ अलग टाइप का सिलेबस होता था, बट नाउ दिस ईयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट समथिंग न्यू टाइप ऑफ पेपर पैटर्न. अभी ये न्यू पेपर पैटर्न क्या था? Today's main video's agenda is सबसे पहले we are going to learn and discuss about the paper pattern. We are going to discuss about the time management कि भाई कितने घंटे का पेपर होगा and उसमें हम लोग कैसे पेपर सॉल्व करेंगे. And the last one, there will be at the end of this video I will be giving you some special tips with respect to history paper. Let us begin with the first part, learning about the paper pattern. Now, when we talk about history, this paper will be comprising of 80 marks and you will be having 3 hours, that is in total 180 minutes for this paper. Objective type questions we can differentiate into 31 marks and subjective type questions रहेंगे 49 marks के. ऑब्जेक्टिव टाइप्स 31 मार्क्स के लिए मतलब बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, एंड सब्जेक्टिव टाइप्स 49 मार्क्स के लिए मतलब बेसिकली ये पूरा का पूरा हिस्ट्री का पेपर तुम्हारा 80 मार्क्स का 180 मिनट्स के अंदर ख़त्म होना चाहिए. So that is why what we are going to do is we are going to learn first of all the paper pattern of your history paper. Now starting with the first question, that is question number 1A. Question number 1A, you will be having fill in the blanks, that is choose the correct alternatives and rewrite the statement for 6 marks. इसमें तुम लोगों को 6 मार्क्स का fill in the blanks रहेगा with options. उसके बाद रहेगा question number 1B. Find the incorrect pair from group B and write the corrected one. This will be for 4 marks. That is question number 1A and 1B totally comprising of 10 marks. Question number 2A will be write the names of historical places and persons or the certain events for 4 marks. And उसके बाद the next question will be question number 2B, that is choose the correct reasons from the given below and complete the statements. Now first, fill in the blanks, choose the alternatives. चलो समझा, you have to write the entire statement. मतलब तुम लोगों को fill in the blanks लिखना है, पूरा statement के साथ लिखना है जैसे 10th standard तक किया था वैसे. Find the incorrect pair from the group B and write the corrected one. मतलब खाली group B जैसे incorrected pair group B में wrong रहेगा और corrected one ढूंढना है वैसा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A, राइट द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस, पर्सन्स और इवेंट्स. लाइक फॉर एग्जांपल तुम लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा हु इज नोन एज द फादर ऑफ एम्पेरिकल साइंस, या फिर क्वेश्चन दिया रहेगा द सी वोयाज फॉर एक्सप्लोरेशन वर एनकरेज्ड बाय द रेन ऑफ क्वीन डैश. मतलब कौन सा? तो बेसिकली द नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस और नेम ऑफ द इवेंट्स दिया रहेगा. उसके बाद चूज द करेक्ट रीजन फ्रॉम द गिवन बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंस. दैट विल बी कमिंग फॉर 4 मार्क्स. मतलब वो 4 मार्क्स में तुम लोगों को कैसा रहेगा, इट विल बी वेरी सिमिलर लाइक जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, बट वो स्टेटमेंट कंप्लीट करना रहेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को 4 ऑप्शन भी दिया रहेगा. छत्रपति शिवाजी महाराज लिवाइड ऑक्ट्रॉय टैक्स ऑन सॉल्ट ट्रेड टू डैश. मतलब कि ऑप्शन दिया रहेगा अपोज द पोर्चुगीज और टू रेज द फंड्स फॉर स्वराज्य और अपोज द कॉलोनियलिज्म एक्सेट्रा. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2B. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यू विल बी गिवन अ प्रॉपर मैप एंड उसके बेसिस पे तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा. तुम लोगों को इसमें ऑप्शन नहीं दिया है एंड दिस विल बी फॉर 5 मार्क्स डियर स्टूडेंट्स. ऑप्शन नहीं है इसमें एंड दिस विल बी कमिंग फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 5 मार्क्स. इसमें तुम लोगों को 5 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, द नेक्स्ट वन, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप. नाउ तुम लोगों को इसमें 5 कॉन्सेप्ट मैप दिए रहेंगे, रादर 5 नहीं, तुम लोगों को 6 कॉन्सेप्ट मैप्स दिए रहेंगे एंड 6 में से यू हैव टू सॉल्व एनी 4.
each concept map for 2 marks. Like for example the inventors and the inventions, like for example serial number, name of the space, name of the state and date of formation. या फिर geographical discoveries done by Marco Polo, तो उसके नीचे क्या geographical discovery किया वो, मुंगो पार्क कौन सा geographical discovery किया वो, for the causes of colonialism क्या क्या, मतलब basically ये concept map रहेगा for 2 marks each. 4 you have to write out of 6. Next question which will be asked, that is question number 5, write short notes on. Now write short notes on जो question दिया रहेगा, this question will be any three out of 5 and that will be for 6 marks, that is 2 marks each. इसमें तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक अबाउट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, गिव राइट शॉर्ट नोट ऑन लीग ऑफ नेशन, और राइट शॉर्ट नोट ऑन करताज, व्हाट वाज करताज ऑल अबाउट, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक्सेट्रा. सो 2 marks का आंसर 4 points लिखना easily. Next question number 6, explain the following statement with reasons, any 3 out of 5 again. This will be give reasons, अपने भाषा में बोले तो this will be 3 marks each. So explain the following statement with reasons, any 3. 9 marks के लिए रहेगा टोटल, मतलब टोटल 9 marks के लिए any 3 रहेगा तो 3 out of 5, that will be for 9 marks. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 विल बी स्टेट योर ओपिनियन. नाउ इसमें ना बच्चा, इसमें ध्यान रखना है अपने को, दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एनी 3 out of 5, बट इसमें ना अपने हिसाब से लिखना नहीं है हम लोगों को. मतलब क्या, मतलब अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे, मतलब जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली हम लोग क्या शेक्सपियर बन जाते हैं, अपने हिसाब से लिखना चालू कर देते, अपना थॉट मेरे हिसाब से नहीं चाहिए उसको. एग्जामिनर को तेरा थॉट नहीं चाहिए, एग्जामिनर को तेरे टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसके बेसिस पे आंसर चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेवी, स्टेट योर ओपिनियन. तो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है उसके बेसिस पे तू आंसर देगा. लाइक यूरोपियन नेशंस एस्टैब्लिश कॉलोनीज इन अमेरिका, स्टेट योर ओपिनियन. सो इसमें जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया रहेगा वो हम लोग लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, एनी 2 out of 3, दिस विल बी देयर फॉर 10 marks. एनी 2 out of 3, रिमेंबर स्टूडेंट्स 5 marks का एक आंसर है. एक ये क्वेश्चन और एक 9th क्वेश्चन, ये दोनों अगर बरोबर से करके गए तेरा बेस उधर ही ख़त्म, तेरे को 60% से मार्क्स ज़्यादा, 70% से ज़्यादा मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे. दैट इज़ अगर ये दोनों क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 बरोबर से कर लिया तो. आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, एनी 2 out of 10, एनी 2 out of 3, 10 marks के लिए. एंड क्वेश्चन नंबर 9 विल बी राइट डिटेल्ड आंसर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, एनी 3 out of 4. रादर तुम लोगों को पूछा जाएगा एनी 3 out of 5, एनी 3 out of 5 15 मार्क्स के लिए. ना कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 में तुम लोगों को पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. तो मॉडरेट्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, वी विल बी गिविंग इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको मॉडरेट्स के बारे में लिखेंगे, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में लिखेंगे, 2 पार्ट में आंसर डिवाइड कर देंगे. एंड वी विल बी डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स. उसके अलावा आंसर में भी कैसे लिखेंगे, तो आंसर में हम लोग उसके अलावा लिखेंगे इनटू 2 पार्ट्स. दैट इज मॉडरेट्स लिखा तो उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे और उसको फाइनली कंक्लूड करेंगे. एक्सट्रीमिस्ट लिखेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, फाइनली कंक्लूड करेंगे. दिस इज द वे कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे अपना आंसर. दैट इज आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल. या फिर दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 8 के हिसाब से, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें भी कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, कभी स्टार्ट हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर 1939, एंडेड इन द ईयर 1945. उसके बाद द कॉजेज, एंड तुम लोगों को जो जितना कॉजेज पूछा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को 5 कॉजेज लिखना है तो 5 कॉजेज के हिसाब से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, एंड फाइनली कंक्लूड करना है वो आंसर को. बट क्वेश्चन नंबर 9 में वैसा नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 9 में राइट डिटेल्ड आंसर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग, एनी 3 out of 5 है, उसमें तुम लोगों को सब क्वेश्चंस दिया रहेगा. सब क्वेश्चन दिया रहेगा मतलब क्या, मतलब उसमें डिफरेंट पॉलिसीज एक्सप्लेन किया रहेगा, या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द स्टेट रहेगा, एक्सप्लेन द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ कोलोनियलिज्म, उसके अंदर सब क्वेश्चंस रहेगा. या फिर तुम लोगों को
अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा रहेगा। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अलग अलग स्टैम्प एक्ट क्या था, बॉस्टन टी पार्टी क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय थॉमस जेफरसन क्या था, वो एक्सप्लेन करना है अपने को। सो इस तरह से तुम लोगों को डिटेल्ड आंसर को टैकल करना है। नेक्स्ट पार्ट जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में बहुत ईजी है। तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ पे एंड तुम लोगों को टाइम दिया है। मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करेगा प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 1A एंड B तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट्स है। क्वेश्चन नंबर 1A एंड B उसमें क्या क्या आएगा, तो 1A विल बी फिल इन द ब्लैंक्स एंड 1B विल बी इनकरेक्ट पेयर। इसके लिए तुम लोगों को 15 मिनट्स दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A हिस्टोरिकल प्लेसेस, इवेंट्स या फिर पर्सन वाला, एंड दूसरा रहेगा कंप्लीट द सेंटेंस वाला, दैट इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 2A एंड B। उसके लिए तुम लोगों को 20 मिनट्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तुम लोगों को 10 मिनट्स दिया जाएगा। 10 मिनट्स फॉर 5 क्वेश्चंस, इजी है, मैप वाला आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्सेप्ट मैप के लिए तुम लोगों को ड्रॉ करने के लिए टाइम लगेगा, दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट 20 मिनट्स फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग देखें, राइट शॉर्ट नोट्स, एनी 3 है। अभी इसमें 4-4 पॉइंट्स के 3 आंसर लिखने हैं, तो मैंने 12 मिनट्स गिना था, बट मैक्सिमम इसके हिसाब से मैंने 15 मिनट्स ऐड करके दिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आर दोज क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सबसे पहले आई डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एनी 3 आउट ऑफ 5 है। 3 मतलब वो 3 मार्क्स का आंसर है तुम लोगों के लिए, उसके लिए 15 मिनट्स दिया है। अभी रिमेंबर स्टूडेंट्स, तुम लोगों को जो भी करना है वो ये 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन में ही तुम लोगों को ये 90 मिनट्स सिक्योर करना है। बिकॉज हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 31 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर ऑब्जेक्टिव मार्क्स, एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना भी सेंसिबल नहीं है। सो 90 मिनट्स तुम लोग सब्जेक्टिव पे दोगे, 90 मिनट्स ऑब्जेक्टिव पे दोगे। रादर वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि 120 मिनट्स तुम लोग ऑब्जेक्टिव्स पे आंसर्स पे दोगे एंड 60 मिनट्स तुम लोग दोगे ऑन ऑब्जेक्टिव्स। सो क्वेश्चन नंबर 6 15 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 7 15 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 8 30 मिनट्स एंड क्वेश्चन नंबर 9 30 मिनट्स। तो सर टोटल तो 170 हुआ। 10 मिनट्स फॉर वेरिफिकेशन एंड टोटल विल बी 180 मिनट्स। वैसे मैंने डिवाइड करके रखा है। टोटल टाइम मैनेजमेंट इजी हो गया, वेरी सिंपल। फाइनल टिप्स तुम लोगों के लिए, draw the flowchart concept maps neatly, write answers filled in the box. The answers filled in the box should be written clearly, should be seen clearly, read for the corrector, and पहले बॉक्स बनाना उसके बाद आंसर लिखना, नहीं उल्टा, पहले आंसर लिखो उसके आजू बाजू बॉक्स बनाओ। क्योंकि कैसे होता है, बॉक्स बना लिया फिर आंसर फिट नहीं होता है, बाद में बाहर चला जाता है, दैट इज समथिंग रॉन्ग। राइट ऑल द आंसर्स पॉइंट वाइज चाहिए आंसर्स, नीट एंड क्लीन सर्व कर रहे हैं हम उनको आंसर्स। इसके लिए अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। डू नॉट राइट एंड अंडरलाइन रॉन्ग इंफॉर्मेशन। आई रिपीट, डू नॉट राइट एंड अंडरलाइन द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। शायद मुझे लग रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था 1930s था कि 40s था, आई डोंट रिमेंबर। चल ना लिख देती हूँ, जो होएगा देखा जाएगा, यार लिख देता हूँ जो होएगा देखा। दैट इज़ रॉन्ग। अगर श्योर नहीं है ईयर मत लिख। इट वॉज इन 1939। श्योर है तो लिख। इट स्टार्टेड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर 1939, एंडेड इन द ईयर 1945। डू नॉट राइट एंड अंडरलाइन द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज, अ न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। फाइनली अवॉइड ओवर राइटिंग, रबिंग, कैंसलेशन। ये मेरे को बोलने का ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अभी स्कूल किड्स नहीं हो, बट अवॉइड करो हो सके उतना ज़्यादा। बिकॉज बहुत बार देखा है इट लुक्स शैबी, पेंसिल से शेडिंग स्किल्स दिखाते हैं, दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। सो जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट ओवर राइटिंग, रबिंग, कैंसलिंग। इट्स वेरी ईजी, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ईजी पेपर एंड होपफुली ये तुम लोगों को हेल्प करेगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब on my channel, and lastly, thank you so much and wish you all the best for your examinations. Thank you so much from Space Family. Take care. Bye-bye.